ہے مراد علی شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ مراد صاحب آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کیا۔ پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کور آبجیکشنز کا تو ہمیں علم ہے جو آپ کی قیادت کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی ہمارے سامنے آتی رہیں۔ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ شاید مرکز میں شہباز شریف کی حکومت اور پنجاب میں مریم نواز کی حکومت نے کچھ لچک دکھائی ہے اس معاملے پر؟ کچھ دروازہ کھڑکی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے لیا ہے اپنے پروگرام میں۔ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، اور اس پہ اگر کوئی اور سوالات ہوں گے تو میں اس کو خوشی سے جواب دوں گا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کیوں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں کوئی لچک نظر آئی ہے، تو میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ یہ منصوبہ بہت پہلے اس کی فیزیبلٹی تو بنی تھی، لیکن ریسنٹ ٹائمز کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے زمانے میں جنوری 2024 میں ارسا نے اس کی اپروول دی تھی۔ ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا اویلیبلٹی آف واٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ ارسا نے دی تھی ان جنوری 2024 جب یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں تھی۔ اس کے بعد جون میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آف سندھ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو کہ نیکسٹ سٹیج ہے ارسا کو چیلنج کرنے کے لیے، اگر آپ اگریوڈ ہیں ارسا کے کسی ڈیسیجن سے تو آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جانا ہوتا ہے۔ تو جون 2024 میں ہم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ منصوبہ آنا تھا ایکنک میں۔ جب یہ ایکنک میں آیا، اینڈ آئی بلیو دس واز نومبر لاسٹ ایئر، اس وقت میری اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی تھی، پھر میں نے ان کو خط بھی لکھا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ ایشورنس دی تھی کہ جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا ہم اس منصوبے کو ایکنک میں نہیں لائیں گے۔ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہم، آئی ایم گریٹفل ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ کے نومبر سے لے کے ابھی ہم مئی آنے لگا ہے، اپریل میں ہے، کہ وہ منصوبہ 6 مہینے ہو گئے وہ ایکنک میں وہ نہیں لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپریہنشنز یہ ہیں کہ اس کو انہوں نے ختم بھی نہیں کیا ابھی تک۔ تو لچک تو اس وقت سے تھی، دے ریئلائزڈ کہ شاید یہ چیز سندھ کے لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہ ہے، اور اسی وجہ سے ادروائز تو وہ اگر ایڈمنٹ ہوتے اور ایروگنٹ ہوتے تو وہ لے جاتے، لیکن تھوڑی سی ہمیں تکلیف ضرور اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو واپس ابھی تک نہیں لیا ہے جو کہ ان کو لے لینا چاہیے تھا۔ اور ریسنٹ ٹائمز میں رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکشنز ملی ہیں کہ وہ انگیج کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور گورنمنٹ آف سندھ سے۔ جب ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی تو ہم نے اس کو اسی وقت ویلکم کیا تھا، اس لیے انگیجمنٹ کے لیے تو ہم ہمیشہ سے تیار ہیں۔ انگیجمنٹ ہوگی، ہم تو سی سی آئی چاہتے ہیں ہو تاکہ انگیجمنٹ ہو، اور سی سی آئی میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اور میں بہت شیور ہوں کہ جب ہمارا پوائنٹ لوگ سنیں گے تو وہ اگری کریں گے کہ یہ سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے کسی اور کنال کو بنانے کے لیے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ کی جب ہم نے پازیٹیو اس کو سارٹ آف ویلکم کیا تھا اسٹیٹمنٹ کو، پھر ان کا کال بھی آیا ہمارے پروونشل انفارمیشن منسٹر جو کہ اسپوکس مین بھی ہیں سندھ حکومت کے، ان کو آیا تھا، اور انہوں نے وہی میری گورنمنٹ کی طرف سے اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ڈائریکشنز تھی کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ آئیں بات کریں، اس لیے کہ بات چیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اس مسئلے کا حل with all due respect to anybody who is proposing this project is کہ اس کا حل یہی ہے کہ پانی سسٹم میں موجود نہیں ہے، اس لیے کوئی کنال بن نہیں سکتا۔ اچھا، اس کو معاملے کو آپ کھول لیتے ہیں جی، اعتراضات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ظاہر اعتراضات سیاسی میٹنگز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے تو سامنے آ رہے ہیں، تو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ ان کا معائنہ بھی کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا واقعتاً یہ جو کنال ہے محفوظ شہید کنال یا اس کے ساتھ جو لنک کنالز بن رہی ہیں اور 2 اور بھی بن رہی ہیں، لیکن لیٹس کال اٹ چولستان کنال، محفوظ شہید کنال، یا آپ کہیں گے گرین پاکستان انیشیٹو کنال، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، یہ دریائے سندھ پر تو نہیں بن رہی، یہ تو دریائے ستلج پہ بن رہی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، دریائے ستلج پہ بن رہی ہیں۔ دریائے ستلج کے ایک قطرہ پانی بھی پاکستان کے حصے میں نہیں ہے، وہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی میں
इंडिया को दे दिया था, ये 1960 की बात है। फिर आप चश्मा झेलम लिंक कैनाल और तौसा पंजनत लिंक कैनाल जो कि इंडस से पानी ट्रांसफर करते हैं टू दिस रिवर्स, झेलम झेलम में ये दोनों करते, फिर झेलम चनाब में जाता है, चनाब से रावी और रावी से सुतलज। तो ये पानी अल्टीमेटली आना वहीं से है अगर शॉर्टेज होगी। लेकिन एडिशनल और अगर इसकी थोड़ी सी वजाहत भी साथ साथ वजाहत भी होती जाएगी वो मेरी अपनी तालीम के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल वाटर है इसके ऊपर तो बाकायदा एक अकॉर्ड मौजूद है और आपने ज़ाहिर है उसको देखा होगा। उसके अंदर पंजाब का भी कोई मेरे ख्याल में 32 या 37% है, मेरे जहन में नहीं है, मेरे ख्याल में 32% है पंजाब का, और सिंध का भी 32% है। तो ये जो फ्लड वाटर आना है 33 दोनों का जी 33 है, तो ये जो फ्लड वाटर आना है उसके लिए भी ये कैनाल्स बनी है, क्योंकि अगर फ्लड वाटर ना आना होता तो टेक्निकल लोग ये हमसे हमारे साथ नुक्ता रखते हैं कि अगर फ्लड वाटर ने ना आना होता, इजाफी वाटर ने ना आना होता और बाद में भाषा डैम भी अगर बनता है तो फ्लड वाटर और ये डैम के वाटर ने ना आना होता तो ये अकॉर्ड का हिस्सा ना होता, तो उसके ऊपर तो कैनाल बनना जायज है कि नहीं? अच्छा तलत साहब मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं ख्याल से 2 से 3 मिनट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दूंगा। जी बिल्कुल अकॉर्ड में है, पैरा 4 है जिसमें फ्लड वाटर का जिक्र है या एडिशनल वाटर का जिक्र है। सबसे पहले एडिशनल वाटर यानी पानी जायद होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 37 नहीं तो कर लेते। इरसा ने कहा कि जी हमने 1977 से लेके 2023 तक पानी का बहाव देखा है और इस दरमियान 27 मिलियन एकड़ फीट पानी एवरेज में समंदर में जा रहा है। इससे पहले जनरल मुशर्रफ ने जब कालाबाग डैम का काम शुरू किया तो उस जमाने में ये कहते थे 35 मिलियन एकड़ फीट जाता है समंदर में, और अगर आप पिछले 25 साल का एवरेज ले लें, इसलिए कि ये पानी कम होता चला जा रहा है, 25 साल का एवरेज ले लें तो ये रह जाता है 14 मिलियन एकड़ फीट पानी जो समंदर में जाता है। अब आ जाए कि जी पानी समंदर में जाना कितना चाहिए, हमारा ख्याल है कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट। जो इन्होंने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी उन्होंने कहा कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट। जो पानी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी 114 मिलियन एकड़ फीट सिस्टम का उसकी भी इस वक्त एवरेज शॉर्टेज जो है वो 11 पॉइंट सम मिलियन एकड़ फीट है, 11 समझ ले आप, 11 मिलियन एकड़ फीट वो है। तो इस वक्त जो सिस्टम में कम से कम पानी आपको चाहिए जो वाटर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है पिछले 25 सालों का, तो वो चाहिए 11.1 और 8.6 और समझ ले तकरीबन 20 MF ना, राउंड ऑफ कर लेते 19.6 बनता है। 20 MF पानी तो आपको कम से कम इस वक्त चाहिए। उसके बाद अब फ्लड की बात करेंगे, एडिशनल वाटर की बात करेंगे। और मैंने आपको बताया पिछले 25 साल में ये रिकॉर्ड्स हैं, 14 MF पानी ऑन एवरेज जा रहा है। और मजे की बात, आप एक बार एज्यूम कर लें कि आपने ये कनाल 1999 में बना लिया होता है, यानी 25 साल का रिकॉर्ड में देख रहा हूं, 25 साल पहले। इन 25 सालों में सिर्फ 3 साल ऐसे थे जिसमें पानी 20 MF से ज्यादा समंदर में गया। यानी आपके पास पहला कतरा तब जाएगा इन कनाल्स पे जब आपके पास 20 MF पानी जायद हो जाए। पिछले 25 साल में सिर्फ 3 साल है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कनाल बन जाते हैं तो 25 साल में इसमें फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर वुड हैव गॉन इन ओनली 3 years आउट ऑफ द 25 years। आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ज़मीनें चाह रहे हैं कि लोग इन्वेस्टर्स आए वो खरीदें, और आप उनको ये एश्योरेंस देंगे कि अगर फ्लड नहीं आया तो पानी नहीं आएगा, अगर फ्लड आया तो हम अपने हिस्से में से पानी दे देंगे। हमें यही डर है, और ये डर इसलिए है कि ये पहले हो चुका है हमारे साथ कि अगर शॉर्टेज होगी तो जो अपस्ट्रीम में बैठा होता है वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है। ये हुआ है चश्मा झेलम लिंक कनाल, तौसा पंजनत लिंक कनाल, ये दोनों भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इनका यही था कि अगर शॉर्टेज होती है इन झेलम एंड चनाब, बिकॉज आपने 3 रिवर्स दे दी थी इंडिया को, अगर शॉर्टेज होती है तो फिर हम इसमें से पानी ट्रांसफर करेंगे इफ देयर इज अ सरप्लस ऑन द इंडस। ये रिक्वायरमेंट थी, ये 1972 की एक अग्रीड डॉक्यूमेंट है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध ने 1972 में साइन किया था, और उसमें ये पावर दिया था चीफ मिनिस्टर सिंध को कि एट एनी टाइम ही कैन ऑर्डर द क्लोजर ऑफ चश्मा झेलम लिंक कनाल। अनफॉर्चुनेटली उसको आफ्टर द 91 अकॉर्ड कहा कि जी अब तो 91 अकॉर्ड आ गया, तो वो लेटर किया उस अग्रीमेंट की इट हैज बीन सुपरसीडेड, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बातें कागज पे बड़ी अच्छी होती है कहना कि जी एडिशनल पानी आ रहा है,
वो फ्लड का पानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर इतना डिटर्मिनिस्टिक होता तो 1991 में आप कर देते डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन कदा कलामी, वाटर इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। चले इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर सिंध, आपका जो मैंडेट है वो सिंध के पानी के शेर का तहफ़्फ़ुज़ है, और ये आपका आईनी हक भी है, आपका सियासी मैंडेट भी है, और आपकी जमात का स्टैंस भी है। तो अब बतौर चीफ मिनिस्टर सिंध आपकी वरी क्या होनी चाहिए कि सिंध को उसका हिस्सा मिले, या आपकी वरी ये होगी कि पंजाब अपने पानी के साथ क्या कर रहा है? क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो वाटर अकॉर्ड है उसके एक क्लॉज भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस on provinces to undertake new projects within their agreed shares। तो आपको तो डिमांड मरकज से करनी चाहिए कि भैया हमें अपना हिस्सा लेने दें, आप अपने हिस्से के साथ जो मर्जी करें। तो ये तो पंजाब के अंदर हो रहा है, वो पंजाब कह रहा है कि हम अपने हिस्से से ये कैनाल्स निकाल रहे हैं। Why should you worry? सर मैं ये कह रहा हूं ना कि वी आर डाउनस्ट्रीम। अनफॉर्चुनेटली वाटर अकॉर्ड जब 91 में बना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, और उस 91 अकॉर्ड के उसमें बहुत रिजर्वेशंस हमें, और एक रिजर्वेशन ये भी है, दिस इज सेक्शन 8 और पैरा 8 ऑफ द अकॉर्ड, जिसमें लिखा है कि जी आप अपने हिस्से में से कुछ भी कर सकते हैं। आज तक कोई भी एग्रीमेंट ऐसी नहीं हुई जिसमें लोअर राइपेरियन को ये राइट नहीं दिया गया कि आप अपर राइपेरियन के हर प्रोजेक्ट पे पहले एनओसी दें। ये बहुत पुरानी बातें, 1919 में जो है अंग्रेज की हुकूमत ने भी सिंध के एतराज़ात पे पंजाब के प्रोजेक्ट्स खत्म किए। इट इज़ नॉट बिटवीन प्रोविंसेस, इट इज़ द अपर एंड द लोअर राइपेरियन, और ये जहाँ पे भी होता है ये मसला होता है, इसीलिए लोअर राइपेरियन के राइट ज़्यादा होते हैं। इसका इशू ये है कि ये गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। मैं अब बड़ा साफ कहता हूँ, कोई ये गारंटी मुझे नहीं दे सकता कि जी अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो वो सीजे और टीपी से और ज्यादा पानी ड्रॉ करके नहीं ले जाएंगे। ये गारंटी मुझे कौन देगा? ये क्या टेलीमेट्री सिस्टम आइन में लिख के देंगे? नहीं, टेलीमेट्री या तो आइन में लिख के दें। सीएम साहब, टेलीमेट्री सिस्टम लगा हुआ है, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा अपग्रेड कर रहे हैं ना अभी, कर लेना पहले। मैं वही कह रहा हूं ना, आप पहले टेलीमेट्री सिस्टम को अपग्रेड कर लें। आप हमें, इसलिए कि ये आज की बात नहीं है तलत साहब, ये जो मिसट्रस्ट कह लें, दिस इज नॉट बिटवीन प्रोविंसेस। आप इसको प्लीज इस बात को गौर करें, पंजाब के फार्मर्स भी हमारे फार्मर्स हैं। इट इज द मिसट्रस्ट बिटवीन द अपर एंड द लोअर राइपेरियन। अगर ऐसा ही होता ना तो पंजाब, जो मैं पंजाब अगेन इसलिए कह रहा हूं कि अपर राइपेरियन है, अपर राइपेरियन जब इरसा में जाता ना, वो बताता कि जी मेरा हिस्सा ये है और मेरे हिस्से में से मैं इस नहर में से पानी कम कर रहा हूं, फलानी नहर में से पानी कम कर रहा हूं, फलानी में से पानी कम कर रहा हूं, और मैं चोलिस्तान कनाल को पानी दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी फ्लड में जो पानी समंदर में जाया हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम, उसमें से मैं ये ले रहा हूं। सो ये बहुत क्लियर है। ये अनफॉर्चुनेटली अपर राइपेरियन की मेलाफाइडी इसमें बहुत साफ है। अच्छा, इसमें इस वजह से अपर राइपेरियन पहली बार नहीं है जी।